Okay. Good morning everyone. Today we will do 9th standard geometry 7th lesson, that is coordinate geometry. Okay. पहले समझते लेसन का मतलब coordinate geometry. Coordinate geometry means it's the geometrical calculation using the coordinate system. Geometrical calculation using the coordinate system. What the coordinates are there? The coordinates we have x, y and z coordinate. The three coordinates there are the x, y and z. But this three will be applied when there is a three-dimensional figure is there. But till the 10th standard you are going to learn about only two dimensions. So leave that z axis. That means you are going to learn about x and y axis. So in this we are going to learn about a point can be defined properly using the x and y coordinate. Take an example. If I say in this box there are 4 points. If I say define the point, this one I am taking, this point. So we can define easily if I give it number 1, here 2, here 3, here 4, like this, here 1, this row is 1, this is 2 and this is 3. So you can say define easily that now this point will be 4 and 3, that means 4 in this side and 3 in this side. When they will meet each other that time, that means a point can be defined using this coordinate. अभी जब सम करेंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, क्या करना है, कैसा होता है. ओके, तो पहले हम समझ गए दो कोऑर्डिनेट हमारे पास है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. ओके, देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ के एक्स वाई कोऑर्डिनेट मींस क्या होता है. ये एक्चुअल एक्सिस होते हैं. We have in a Cartesian coordinate system, one is the x-axis and another is the y-axis, and this point is called as the origin. When they meet each other perpendicular to each other, that time this point is called as the origin. From the origin, right side is the positive x. From the origin to the left side is the negative x. From the origin above is the positive y, down is the negative y. So for two axes, वन प्लेन कैन डिवाइड इनटू 4 पार्ट. ये दो एक्सिस की वजह से एक प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में. सो नेक्स्ट टर्म्स कम्स एज द क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट मतलब होता है 4. क्वाड मतलब एक टाइप को बोलते हैं 4. क्वाड्रेंट मीन्स व्हेन द टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर they divide the plane into 4 part and that 4 part is called the quadrant. Now how many quadrant we have? Obviously the 4 part means 4 quadrant will be there. That is named as the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. And the movement of the quadrant, remember that is the important one, it's an anti-clockwise. Anti-clockwise means this will be first, then clockwise means like this, but anti-clockwise means this one, the second, third quadrant and fourth quadrant. अभी जो एक्सरसाइज हम करने वाले उसमें मोस्टली क्या होगा पता है, हमको पॉइंट कहाँ प्लेस करना है, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, कौन से एक्सिस में रहेगा, वो फाइंड आउट करना. तो क्वाड्रेंट का फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा होता है, क्वाड्रेंट का साइन होता है. ये अगर क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे उसका साइन लिख देता हूँ. तो क्वाड्रेंट का साइंस कैसे होता है देखो. द फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज प्लस माइनस. ओके, नाउ जस्ट लिसन. ओके, नाउ विल गेट दैट हाउ द साइन इज असाइंड टू द क्वाड्रेंट. कैसे साइन बना देखो. अभी ये जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है कौन से एरिया में बिलोंग करता है ना, x प्लस और y प्लस में. तो ऑब्वियसली इसका साइन क्या होगा फिर. अभी जो ये क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे क्या होता है ना, x माइनस है y प्लस है, तो इसलिए क्या हुआ माइनस प्लस. तो कुछ बच्चों को डाउट होता है, सर अगर ये प्लस प्लस हुआ तो इसको प्लस माइनस क्यों नहीं करते हैं. डाउट क्या होता है देखा. एवरी पॉइंट कैन रिप्रेजेंट एज x एंड y. पॉइंट जो होता है वो रिप्रेजेंट कैसे होता है, x y से. दैट मीन्स पहला वाला x होना चाहिए, सेकंड वाला y होना चाहिए. अब इस क्वाड्रेंट के लिए बताओ, पहले वाला अगर x होगा तो x का साइन क्या है, इसीलिए पहले माइनस फिर प्लस. इसमें x माइनस y माइनस, इसमें देखो x प्लस है और y माइनस है, इसलिए क्या होगा ये प्लस माइनस. चलो चारों क्वाड्रेंट का साइन थोड़ा याद रखते हैं.
पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। अभी फर्स्ट एंड थर्ड बच्चों को ईजी रहता है क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस सामने सामने समझ जाते हैं। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, सेकेंड और फोर्थ में प्लस माइनस में कन्फ्यूज होते हैं। मैं तुम्हें एक ईजी मेथड बताऊँ याद रखने के लिए। कैसा? देखो पहला साइन यहाँ पे क्या है, माइनस है। ये पहले साइन से हम याद रखेंगे, जिसका पहला साइन माइनस होता है वो नंबर छोटा होता है, दैट मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। जिसका पहला साइन प्लस है, इन दोनों में अगर कन्फ्यूजन है, बाकी इन दोनों में मत लेना, बोलो सर इसमें भी प्लस है। ये प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं बोल रहा हूँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, माइनस प्लस प्लस माइनस के बारे में। अगर इसमें कन्फ्यूजन होगा तो खाली माइंड में रखना कि हम हर टाइम अगर कैलकुलेट करते हैं जनरल कैलकुलेशन में प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है। तो 1 और 2 और 4 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? 4 बड़ा है, दैट मीन्स प्लस अगर होगा तो 4 होगा, माइनस होगा तो सेकंड होगा। ये लॉजिक थोड़ा तुम्हारे लिए अगर याद नहीं होगा तो तुम्हें अभी एक्सरसाइज करने से पहले क्या क्या याद रखना है। सिंपल, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, तुम्हें कोई पूछा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, बोलोगे सर ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोलेगा ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होता है, बोलेगा हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, सब कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड आउट कर सकते हैं। देन कितने कोऑर्डिनेट हमारे एक्चुअल रियल में 3 कोऑर्डिनेट्स आ दिया, बट हमने जेड कोऑर्डिनेट को यूज़ नहीं करते। यूज कौन सा करते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट हमारे 3D फिगर में आता है जो कि तुम्हारे 10th के बाद आएगा। देन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर लेते हैं तो वहाँ पे कितने क्वाड्रेंट बनता है ना, 4 क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स वाई अगर एक्सिस लेते हैं तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है एक प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड होता है तो 4 क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का नाम क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इजी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, माइनस प्लस प्लस होता है, सेकंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस, फोर्थ का प्लस माइनस। ओके, अब इसका यूज क्या होगा, तुम्हें एक पॉइंट दिया होगा, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। इफ आई गिव ए पॉइंट 2 3, द पॉइंट विल लाई इन व्हिच क्वाड्रेंट। अगर क्वेश्चन पूछा होगा तुम्हें सिर्फ नंबर्स को नहीं देखना है, नो नीड ऑफ नंबर्स, नंबर का कोई जरूरी नहीं हमको सिर्फ साइन से मतलब है। नथिंग इज देयर दैट मीन्स प्लस, या नथिंग इज देयर दैट मीन्स प्लस। व्हेन दे बोथ आर प्लस प्लस दैट मीन्स इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। दैट मीन्स नंबर से हमको कोई मतलब ही नहीं, नंबर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे √3 या √5 लिखा होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये प्लस है, ये प्लस है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ऐसे हमको चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा। कभी कभी सुनो, अब एक थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन, अगर कहीं पॉइंट दिया हुआ है 2 एंड 0 दिया हुआ है, तो 2 0 में तुम्हें अगर पूछेगा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं होता है। तो पहले बच्चों को डाउट क्या आएगा पता, सर ये क्यों नहीं होता है क्वाड्रेंट में। ये 2 का साइन क्या है, प्लस, वेरी गुड। बट 0 का साइन क्या है, 0 का कोई साइन नहीं होता है, याद रख लेना। द रूल ऑफ 0 सेज दैट 0 का कोई साइन नहीं होता है, क्योंकि 0 + 2 + 0 भी 2 होता है, 2 - 0 भी 2 होता है। तो इन 0 प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब 0 का साइन नहीं है, दैट मीन्स ये का पॉसिबिलिटी क्या है, प्लस और माइनस। दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकता है। देखो प्लस प्लस लेंगे तो फर्स्ट, प्लस माइनस लिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये ऐसा कोई क्वाड्रेंट होता ही नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जहाँ पे 0 है, ये कहाँ पे 0 है, y को, तो y को भूल जाओ। तो कहाँ पे नंबर है, x में, दैट मीन्स इसको बोलेंगे ऑन x एक्सिस। जब एक्सरसाइज करोगे मैं और अच्छे समझा दूंगा, खाली थोड़ा बहुत लॉजिक याद रखो। कभी 0 रहता है तो वो क्वाड्रेंट में नहीं रहता है, वो एक्सिस के ऊपर होता है। और कौन सा एक्सिस पर होता है ना, जहाँ पे नंबर होता है उसके ऊपर होता है, जहाँ पे 0 होता है उसके ऊपर नहीं होता है। 0 है इसीलिए वो उसके ऊपर नहीं आएगा, जिसमें नंबर होगा उसी में आएगा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे और इसीलिए समझ में आएगा। थर्ड 2 चीज़ें बता रहा हूँ, एक तो था नंबर वाला, अभी 1 0 वाला और 2 0 वाला। अगर मान लो एक पॉइंट दिया है 2 0, बताएगा कहाँ पे पॉइंट लाए हुआ है। दैट मीन द पॉइंट विल लाई इन व्हिच एक्सिस और व्हिच क्वाड्रेंट इज, दिस विल बी आंसर इज द ऑन ओरिजिन। क्योंकि 0 0 तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ओरिजिन से मिलेगा। क्योंकि एक्सिस में कैलकुलेशन कैसे होता है, इसके आगे 1 2 ऐसे लिखा होता है, -1 -2 ऐसे लिखा होता है, ऊपर भी 1 2 ऐसे लिखा होता है, -1 -2 लिखा होता है। दैट मीन्स सिर्फ यही एक पॉइंट है जहाँ पे सब 0 होते हैं वहाँ पे। दैट मीन्स x भी 0 और y भी 0 होता है। दैट्स वाई अगर कोई पॉइंट में 0 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया ऑन ओरिजिन। ओके, अभी तुम्हारा काम क्या है, नोटबुक में नोट डाउन कर लो। फिर इतना ही सिर्फ पहले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो थोड़ा सा, x एंड y। और x y को अगर तुम्हें कोई पूछा तो बोलोगे x 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक प्लस होता है, एक x माइनस होता है, y भी एक प्लस होता है, y भी एक माइनस होता है।
अभी ये दोनों एक्सिस की वजह से कितने पार्ट में डिवाइड होता है एक प्लेन, 4 पार्ट में। तो कितना क्वाड्रेंट हो जाएगा, 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइंस याद रखने के लिए बता दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस क्यों होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है, तो क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस है, वाई प्लस है, इसलिए माइनस प्लस, क्योंकि हर टाइम एक्स को पहले लिया जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस है, माइनस माइनस। फोर्थ में एक्स प्लस है, वाई माइनस है, इसलिए प्लस माइनस। और मैंने बताया फर्स्ट थर्ड इजी याद रखने के लिए इजी रहेगा। सेकेंड फोर्थ में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैंने बता दिया सेकेंड मतलब छोटा नंबर है, फोर्थ मतलब बड़ा नंबर है। जिसका पहला साइन प्लस है मतलब वो फोर्थ, जिसका पहला साइन माइनस है मतलब वो सेकेंड। इतना याद रखो, अब एक्सरसाइज के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। तो पॉज करके लिख लो पहले इतना, फिर मैं एक्सरसाइज कराता हूँ। अभी देखते हैं एक्सरसाइज में क्या दिया है। Okay, 7.1. The first question is given, in which quadrant or which axis do the following point lie? That means कौन से quadrant में या कौन से axis में रहेगा। सिंपल, हर एक क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे a-3 2। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा। देखो माइनस प्लस, मैंने क्या बताया था पहले, माइनस मतलब छोटा, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। बी -5 -2 ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। ये समझ में आ जाएगा तुम्हें आराम से साइन देख के। अभी डिफिकल्ट कहाँ जाएगा होगा, देखो अभी मान लेते हैं थर्ड वाले लेते हैं 3.5 1.5। मैंने पहले बताया था तुम्हें नंबर से मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। इसका साइन प्लस है, इसका भी प्लस है, दैट मीन्स कौन सा होगा, ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी सारे सब मैं नहीं समझाऊंगा, ये वाला देखा एच वाला, क्योंकि वहाँ पे जीरो है दिया हुआ है, एच 0 -5। मैंने उस टाइम में तुम्हें बताया था जहाँ पे जीरो होगा उसको भूल जाना। जीरो किस में, एक्स में, दैट मीन्स वो एक्स में नहीं आएगा, किस में आएगा, वाई में। और वाई भी क्या है, नेगेटिव है, तो लिखोगे ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ रहे नेगेटिव वाई एक्सिस क्यों लिखा, क्योंकि वाई पे है और वाई पे भी दो पार्ट है, एक प्लस है और एक माइनस है, और ये माइनस नंबर है इसलिए ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। ऐसे तुम बता दोगे इसका आंसर। देखो 12 यहाँ पे जीरो है, दैट मीन्स वाई को भूल जाओ, एक्स है और ये पॉजिटिव है, तो क्या लिखोगे, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये देखो 0 एक्स में है तो भूल जाना, वाई प्लस में है, दैट मीन्स क्या लिखेंगे, ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। 0 2.5 सेम थिंग, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। अभी तुम्हें कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे काम है कंप्लीट करना, क्वेश्चन नंबर 1 और इजी है पूरा कंप्लीट करने के लिए। अभी देते क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लेना, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को समझाता हूँ। अभी डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा, इसलिए टाइम नहीं ले रहा हूँ। द इजीएस्ट लेसन रिमेंबर इन दिस और ज्योमेट्री पार्ट ऑफ द 9th स्टैंडर्ड, व्हिच बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। अगर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, व्हिच क्वाड्रेंट इज गिवन, सिंपल थिंग, व्हिच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स विद द बोथ कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। बोथ कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हिच बोथ कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। लिख लोगे तुम लोग अभी, थर्ड क्वाड्रेंट। whose both coordinate are whose x coordinate is positive, that means x positive। अगर हमारा पॉइंट लिखा जाता है तो x पहले लिखते हैं, and y is negative, that means प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देन फोर्थ वन, whose x coordinate is negative, x is negative and the y is positive, that means माइनस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2। देन गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 नीड द ग्राफ। ओके, आई विल ड्रॉ द ग्राफ। व्हाट इट्स गिवन, ड्रॉ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन ए प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, तो पहले एक काम करते हैं, मैं ग्राफ पेपर ट्राई करता हूँ बनाने के लिए। मैं पॉइंट्स को लिख लेता हूँ। -2 4 दिया है, दैट इज L पॉइंट,
m is given 5 and 6, n is given -3 -4, p is given 2 -3, q is given 6 -5, s is given 7 and 0, t is given 0 and -5. ओके, क्वेश्चन लिख लिया मैंने अभी। तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते, देखो ग्राफ। -1 -2 -3 -4 -5 7 1 2 3 4 5। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मिस्टेक्स कहाँ कहाँ होता है मैं छोटा समझाता हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे अगर लाइनिंग होगा 1 यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे, ये रॉन्ग है। 1 को उस लाइन के सीधा ही लिखना था, मैं 1 इसको उसके लाइन के ऊपर, ताकि पता चले ये लाइन 1 का ही है, बीच में नहीं लिखना, ये पहला मिस्टेक। ओके, तो पहला पॉइंट तुम्हारा देखो, तुम्हारा सब लाइन ऐसा रहेगा। मैं लाइन इतना नहीं बनाया क्योंकि वो डिफिकल्ट होगा, खाली इतना मैं समझाऊंगा, तुम्हारे काम में तुम समझ जाओगे। तुम्हारा जो एक्सिस में लाइन होगा ग्राफ पेपर में, तुम समझ जाओगे उसको देख के। द फर्स्ट वन इज इन -2 4। फर्स्ट वन क्या होता है, एक्स होता है। सेकेंड वन क्या होता है, वाई होता है। ये हमारा एक्स लाइन होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। अभी x में -2 देखना है, बताओ x में -2 कहाँ पे आ रहा है, इस लाइन में कहीं -2 आएगा नहीं, x में -2 यहाँ पे आएगा। y में 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। दोनों को अगर मैं मीट कर रहा हूँ तो कहाँ पे मीट होंगे, देन वहाँ पे लिखोगे L -2 4। ग्राफ बुक में ऐसे करोगे पूरा। देन m 5 and 6, x अगर 5 है तो 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। 6 मतलब y 6 ऊपर आएगा। तो अगर 5 और 6 को मैं मीट कर रहा हूँ तो ये मेरा पॉइंट बन जाएगा m 5 and 6। n -3 -4, पहले -3 यहाँ पे क्योंकि पहला वाला x होता है, -3 -4 मीन्स यहाँ पे। अगर ये दोनों मीट करेंगे तो कहाँ पे मीट करेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे n -3 -4। एक ग्राफ पेपर लेके ऐसे सॉल्व करना है तुम्हें। देन p दिया है 2 -3, 2 मतलब समझ रहा है ये 2, -3 मतलब यहाँ पे। -3 इजी है पूरा। क्यों दिया है 6 -5, 6 मतलब यहाँ पे, -5 मतलब यहाँ पे। क्यों हो जाएगा 6 -5। s दिया है 7 0, 7 मीन्स यहाँ पे, 0 मीन्स नथिंग, तो यहीं पे बना देंगे, दैट इज s। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आएगा, सर ये 7 0 कैसे समझ में नहीं पाया। देखो अभी हमको x दिया है 7 ढूंढ लिए, y दिया है 0, y 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे दोनों ही 0 होते हैं, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। दैट मीन्स यहाँ का और यहाँ का अगर जॉइंट करेंगे मीनिंग वही हुआ ना। तो और एक मीनिंग क्या होता है, जब सेकंड वाला पॉजिटिव होता है तो हम ऊपर जाते हैं, नेगेटिव होता है तो नीचे आते हैं, जब 0 होता है तो कहीं नहीं जाना है, एक्सिस पर रख लेना। देन 0 -5, देखो अभी x ढूंढा है 0, तो 0 यहाँ पे है, -5 मतलब नीचे, तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा t 0 -5। तुम्हारे काम है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इतना कंप्लीट करने के लिए। चलो और बार रिपीट कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, देखो और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ फटाफट में। एक्सिस वाला तुम उस टाइम पॉज करके कर सकते हो तुम लोग, मैं खाली क्वेश्चन रिवाइज कर लेता हूँ। व्हिच क्वाड्रेंट एंड व्हिच एक्सिस, तो क्वाड्रेंट में समझ में आ रहा है, अगर माइनस प्लस होगा तो सेकेंड, माइनस माइनस थर्ड, प्लस प्लस होगा फर्स्ट। एक काम करना यहाँ पे लास्ट में ऐड कर देना, जेड लेके ऐड कर दो, 0 0 भी तुम खुद से कर लोगे। इसको क्या लिखोगे, ऑन ओरिजिन। ये किसके ऊपर रहेगा,
ओरिजिन के ऊपर है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ के ऐड कर देना, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। देन ये चारों क्वेश्चन में साइन सब दिया हुआ है, दोनों अगर प्लस होगा क्या होगा, दोनों माइनस होगा क्या होगा,